ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਜ ਯੁਕਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੇ। ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3 ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 5 ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਜ ਯੁਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ। तो सब तो पहला ਅਸੀਂ देख सकते हो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕੰਡ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਣੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਟੇਬਲ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। तो ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਜ ਯੁਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 8 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो इन्हों असीं चैक करना है कि 4 नाल भाजयोग है या नहीं, 8 नाल भाजयोग है या नहीं। तो ये लिए थोड़ा जिहा आपां रिवाइज करांगे। सब तो पहला 4 नाल भाजयोग तो जो असीं किसी भी संख्या की चैक करते हैं तो वो असीं की करीदा, सिर्फ अखीरले जिहड़े 2 अंक ने उन्हां दे नाल जिहड़ी संख्या बनती पई है वो संख्या असीं चैक करीदी है। अगर वो संख्या 4 दे नाल भाजयोग होएगी तो पूरी संख्या 4 दे नाल भाजयोग हो जाती है। जिवें इहदे च हुण ए नहीं, चलो बी जिहड़ा क्वेश्चन है मैं करदा। तो संख्या साडे कोल है 7 2 6 3 5 2। ठीक है, 7,26,352। तो ये संख्या दे विच आपां देख सकते हैं कि ये 4 दे नाल डिविजिबल है या नहीं है। उहदे लई सानूं की करना पएगा, सिर्फ पिछले 2 अंकां दी जिहड़ी संख्या है असीं चैक करांगे। अगर तो ये संख्या 4 दे नाल डिविजिबल हुई, 4 नाल भाग हो गई, तो इसदा मतलब पूरी संख्या जिहड़ी 4 दे नाल भाग हो जाएगी। और 8 ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਵ 352 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ 352 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ 52 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 एकम 4 माइनस करांगे, साढ़े को इत्थे 1 आएगा, उपरों 2 उतारांगे तो 4 तीए 12, बाकी साढ़े को बच गया 0। तो 52 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 352 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਦੇ ਨਾਲ। तो 8 चौका 32 माइनस करांगे, साढ़े को 3 हासिल आएगा, फिर ऊपरों 2 उतारांगे, फिर 32 आ गया, 8 चौका 32। सो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਅੰਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ 8 ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ 8 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये हर क्वेश्चन च सानू करके जिहड़ा वो देखना ही पएगा। ठीक है, तो आप इत्थे लिख लेने हैं क्योंकि 52 4 नाल भाजयोग है, इसलिए 7,26,352 भी 4 नाल भाजयोग है। ठीक है, इसी तरह असीं लिख दांगे क्योंकि हुण पिछले 3 अंकां दी संख्या सी साडे कोल 352, क्योंकि 352 संख्या 4 नाल भाजयोग है, इसलिए 7,26,352 भी संख्या 4 नाल भाजयोग है। ठीक है, तो ये जिन्हें भी असीं क्वेश्चन करने ने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ क्वेश्चन ਕੀਤੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ तो ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ 12159 है तो ये अगर ਅਸੀਂ चेक करना है तो क्योंकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 8 ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12159 ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ 4 ਅਤੇ 8 ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ठीक है सो इसी ढंग दे नाल तुसी बाकी सारे क्वेश्चन जिहड़े उहदे कर लेने ने बहुत आसान ने क्वेश्चन फिर भी कोई किसी क्वेश्चन दे विच दिक्कत आई तां तुसी कमेंट बॉक्स दे विच पूछ सकदे हो इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल है भाज योगता दी जांच दे नियमां राहीं पता करो कि हेठां दित्तियां विचों किहड़ियां संख्यावां 6 नाल भाग हुंदियां हन ठीक है तो सानू इत्थे संख्यावां कुछ दित्तियां होईयां ने असीं ये देखना कि 6 नाल ओह भाग होणगीਆਂ ਜਾਂ नहीं तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ 6 ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਭਾਜਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਖਿਆ 2 ਅਤੇ 3 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਰਟ 2,97,144 क्योंकि ये संख्या साडे कोल जिस संख्या है इसलिए ये साडे कोल 2 नाल भाजयोग है ठीक है जिस्त होण कारण 2 नाल भाजयोग है ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 4 ਨਾਲ 2 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਜਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਜਿਸ ਹੈ इसलिए 2,97,144 संख्या 2 नाल भाजयोग है ठीक है इस तो बाद हुण असीं की करना संख्या दे अंकां दा जोड़ असीं करांगे क्योंकि संख्या 3 दे नाल भाग हुंदी है जां नहीं ये भी असीं चेक करना ना तो 2 जमा 9 जमा 7 जमा 1 जमा 4 जमा 4 तो ये साडे कोल बन जाएगा 11 11 ते 7 18 ते 19 19 ते 4 23 ते 4 27 तो जोड़ 27 बनता है क्योंकि अंकां दा जोड़ 27 ये 3 दे नाल भागयोग है ठीक है भाग हो जाएगा ये भाग हो जाएगा इसलिए ये संख्या 20 साडे कोल 3 दे नाल भागयोग होएगी ठीक है तो 3 नाल भागयोग है या 3 दा गुणज है लिख सकते हैं आप 3 ਦਾ ਗੁਣਜ ਲਿਖ ਦੋ 3 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 3 ठीक है इस ਲਈ 2,97,144 संख्या 3 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ है संख्या 3 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ है ठीक है सो क्योंकि हुण सानू ये लिखना पएगा क्योंकि ये संख्या 2 ਅਤੇ 3 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ है इसलिए ये संख्या 6 ਨਾਲ भी ਭਾਜਯੋਗ होएगी क्योंकि 2,97,144 संख्या 2 ਅਤੇ 3 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ है इस ਲਈ संख्या 2,97,144 संख्या 6 ਨਾਲ भी ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन बहुत सौखा है, सवाल सौखा है, पर ये लिखण वाला काम जो वो थोड़ा ज़्यादा होएगा अपना। ठीक है, सो इसी तरह बाकी संख्यावां दे विच भी आपां देख सकते हैं। हुण ये भी साडे कोल जिस्ट संख्या है, 8 इकाई अंक साडे कोल जिस्ट है, इसलिए ये संख्या भी साडे कोल 2 दे नाल भाग हो जाएगी। सम करके जोड़ करके असीं देख लांगे कि 3 दे नाल भाग हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है ना, दोनों चों एक नाल भी जे भाजयोग नहीं है तो इसदा मतलब वो संख्या साडे कोल 6 नाल भाजयोग नहीं होएगी। ठीक है, जिद्दां हुण ये टांक संख्या है, क्योंकि इहदे च 5 जिहड़ा इकाई अंक है वो साडे कोल टांक है। ठीक है ना, ऑड नंबर है, तो इसलिए संख्या 2 नाल भाजयोग नहीं होएगी। जेकर ये संख्या 2 नाल भाजयोग नहीं है तो असीं इहनूं लिखांगे कि 6 दे नाल भी भाजयोग नहीं हो सकदी। सानूं 3 दे नाल चैक करन दी जरूरत नहीं है। इहनूं असीं लिख लैंदे आ 4335 सी भाग जिहड़ा है ठीक, तो असीं लिखांगे क्योंकि 4335 दा इकाई दा अंक टांक है, इसलिए ये संख्या 2 नाल भाजयोग नहीं है या 2 नाल डिविजिबल नहीं है, 2 नाल भाजयोग नहीं है। सो ये संख्या जेकर 2 नाल भाजयोग नहीं है तो 3 नाल चेक करने की जरूरत नहीं है। इत्थे असीं कह देंगे कि ये संख्या 6 नाल भी भाजयोग नहीं है। संख्या 6 नाल भी भाजयोग नहीं होवेगी। ठीक है, कोई संख्या हो सकता है जी 2 नाल भाजयोग होवे पर 3 दे नाल भाजयोग ना होवे, जिवें 8 है, 8 2 नाल भाग हो जाता पर 3 नाल भाग नहीं होंदा। ठीक है, सो इस तरह तुहानूं संख्यावां मिलणगीਆਂ, कुछ संख्यावां मिलणगीਆਂ जिहड़ियां दोनों नाल भाजयोग नहीं हैगीਆਂ। ठीक है, कुछ मिलणगीਆਂ जिहड़ियां एक नाल भाजयोग नहीं हैगीਆਂ, कुछ मिलणगीਆਂ जिहड़ियां दोनों दे नाल ही भाजयोग होणगीਆਂ। तो जिहड़ी संख्या 2 ते 3 दोनों दे नाल भाजयोग होएगी वो 6 दे नाल भी भाग हो जाएगी। जिहड़ी संख्या 2 ਜਾਂ 3 दोनों नाल ਜਾਂ दोनों चों किसी एक नाल भाजयोग नहीं है, भाग नहीं होंदी, तो वो संख्या 6 दे नाल भी भाग नहीं होएगी। ठीक है, तो ये बाकी क्वेश्चन हम तुसीं अपने आप जिहड़े ट्राई करने ने, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट होया तो जरूर पूछ लियो, कर सकते हो। वैसे अगर तुहानूं इन्नी चीज़ दोनों वीडियोज़ तुसीं देखियां ने तो बड़े आराम दे नाल सवाल हो जाणगे। ठीक है, इस तो बाद अगले सवाल साडे कोल हैगे ने, भागयोगता की जांच के नियमां राहीं पता करो कि हेठां दित्तिआं विचों किहड़ियां संख्यावां 11 नाल भाग हुंदियां हन। ठीक है, इहदे विच सानूं संख्यावां दित्तिआं होईआं ने, इहदे विचों भी असीं क्वेश्चन जिहड़ा देखदे हां। तो इहदे बारे असीं गल कीती सी लास्ट वीडियो दे विच कि 11 नाल असीं किवें चैक करदे हां कि कोई संख्या भाजयोग है जां नहीं। तो इहदे चों सी पार्ट जिहड़ा आपां ले लैंदे हां, बाकी भी सारे उसे ढंग दे नाल करांगे आपां। 7 1 3 8 9 6 ते 5। ठीक है, तो सब तो पहला असीं की करदे हां, इहदे विच असीं उन्हां अंकां दा जोड़ करांगे। सज्जे पासे तो असीं गिणना शुरू करांगे, तो जिहड़े साडे कोल टांक स्थानां दे उत्ते अंक ने, पहलां असीं उन्हां दा जोड़ करांगे। टांक स्थानां दे साडे कोल किहड़े-किहड़े अंक ने, जिवें ये है 1 नंबर ते, ये 3 नंबर ते है, 4 नंबर ते है, 5 नंबर ते है साडे कोल। ठीक है ना, तो बाकी जिहड़े बच गए साडे कोल ये जिस स्थानां दे उत्ते अंक जिहड़े मौजूद हैगे। ठीक है, तो इहदे च आपां लिखांगे पहलां टांक स्थानां वाले अंकां दा जोड़। टांक स्थानां वाले अंकां दा जोड़, तो ये साडे कोल है 5 जमा 9 जमा 3 जमा 7। तो ये जोड़फल साडे कोल बन गया जी 14 14 ते 3 17 17 ते 7 24। ठीक है, इस तो बाद जिस स्थानां वाले अंकां दा जोड़। ठीक है, तो जिस स्थानां वाले जिस स्थानां वाले अंकां दा जोड़। ये साडे कोल बनेगा 6 जमा 8 जमा 1, 6 जमा 8 जमा 1, और ये जोड़ साडे कोल बनता है 8 6 14 14 ते 1 15।
ठीक है। तो हुण असीं की करना है, जिहड़ियां दोनों साडे कोल जोड़फल आए ने, इन्हां दोनों जोड़फलां दा अंतर जिहड़ा असीं लिखांगे। ठीक है, तो अंतर बराबर डिफरेंस जिहड़ा है दोनों दा 24 घटाओ 15। 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ 9। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 9 ਹੈ ਇਹ 11 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਖਿਆ 9 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇਹ 11 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਸੰਖਿਆ 11 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆ 11 ਦਾ ਗੁਣਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। गुणज का मतलब 9 के पहाड़े 11 के पहाड़े 9 नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए 71,38,965 संख्या 11 नाल भाजयोग नहीं है। संख्या 11 नाल भाजयोग नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह ये कोई भी होर एक सवाल असीं लैके उहनूं आपां कर लैंदे हां। चलो ये आखिरी F सवाल है, इहनूं भी असीं कर लैंदे हां। बाकी दे पार्ट भी सारे उसी ढंग दे नाल होणगे, इसलिए सारे पार्ट जिहड़े ओह मैं नहीं करांगा इत्थे। तो ये साडे कोल है 9,01,153। 9,01,153। सो इहदे विच सब तो पहला टांक संख्यावां दे अंकां दा जिहड़ा असीं जोड़ करांगे। टांक स्थानां वाले अंकां दा जोड़। टांक स्थानां वाले अंकां दा जोड़। तो टांक स्थान साडे कोल किहड़े-किहड़े, टांक स्थान ते किहड़े-किहड़े अंक ने? 3, 1 ते 0। तो 3 जमा 1 जमा 0 ये साडे कोल बनदा है 4। इसी तरह जिस स्थानां वाले अंकां दा जोड़, जिस स्थान ते किहड़े ने, जिवें दूजे स्थान ते 5 है, चौथे स्थान ते 1 है और इस तो बाद 6वें स्थान ते साडे कोल 9 है। तो जिस स्थानां वाले अंकां दा जोड़। जिस स्थानां वाले जिहड़े अंक ने साडे कोल 5 जमा 1 जमा 9, तो ये साडे कोल बनदा है 15। ते हुण असीं दोनां दा अंतर जिहड़ा ओह चैक करांगे। अंतर साडे कोल बनेगा 15 घटाओ 4। 15 घटाओ 4 साडे कोल 11 बन जांदे ने। तो 11 क्योंकि साडे कोल 11 दा गुणज है, इसलिए ये संख्या भी साडे कोल 11 नाल भाग हो सकदी है। ठीक है, क्योंकि अंतर 11 दा गुणज है या 11 नाल भाजयोग है, इसलिए 9,01,153 भी 11 नाल भाजयोग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट दे विच असीं देखिया सी कि साडे कोल जिहड़ा अंतर सी ओह 9 आया सी, जिहड़ा 11 दे पहाड़े विच नहीं आंदा सी, इसलिए असीं लिखिया सी कि 11 दा गुणज नहीं है 9, इसलिए ये संख्या 9 दे 11 नाल भाजयोग नहीं है। पर इस बार जिहड़ा साडे कोल अंतर है वो 11 है। अंतर 11 भी हो सकता है, अंतर 22, 33, 44 कुछ भी हो सकता है, वो 11 दे पहाड़े विच भी आ सकता है, जां अंतर जिहड़ा 0 होवे फिर भी साडे कोल संख्या जिहड़ी है वो 11 नाल भाजयोग हुंदी है। ठीक है, जिवें ये साडे कोल संख्या पहला सवाल है, पहले दे विच 5 4 4 5 है, साडे कोल 5445 है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਫਲ ਕਰਾਂਗੇ तो ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੇ 5 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਕ ਨੇ 4 ਤੇ 5 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਹੀ ਬਣੇਗਾ। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਘਟਾਓ 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 0 ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, तो बाकी सवाल तुसी अपने आप जरूर करने ने। फिर भी कोई डाउट होया किते कोई सवाल नहीं पता लग्या, कोई आंसर नहीं मैच किया तो जरूर पूछ लेना।
तो विद्यार्थियों ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।